Before we start, shall we look to the Lord in prayer? शुरू करने से पहले आए हम प्रार्थना करें। Dear God, Heavenly Father, I want to thank you, Lord, for another opportunity to sit at your feet and to learn from you. Father, I pray that you will fill this hall with your presence. And Father, I also pray that your anointing will be upon me and my sister here will be doing the interpretation. I pray, dear God, in all that we say, we will be controlled by your Holy Spirit. That what we hear from you, Lord, will bless our lives, bless our families and our children. Father, I want to commit this church to you. Pray that with your presence, with your guidance, this church will grow from strength to strength and will be a light in this city of Siliguri, will be a salt that many will come to know Jesus Christ as their Lord and Savior through this church and every member present in it. Thank you, Lord, for giving us this opportunity again to sit at your feet. We pray this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Now we will do in a session of parents-children relationship. अभी हम दूसरे सेशन में जा रहे हैं। हमारा विषय है माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध के बारे में। The objective of this next session in this class that we're going to take now is this. That is the objective. और यही विषय है जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 10वां says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. यूहन्ना 10वां अध्याय का 10वां पद हमें बताती है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है और मैं इसीलिए आया हूँ कि आप लोग पूर्णता में अपने जीवन को पाएं। When a thief comes inside our homes, जब चोर हमारे घर में आता है, he will always look for something precious. वो आपके घर में आके जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु है, For something valuable, जिसका मूल्य बहुत ही ज्यादा है, उसकी तलाश करता है। So Satan is also on the lookout for young people only. इसी प्रकार शैतान भी जो जवान बच्चे हैं, जवान नौजवान हैं, उनकी तलाश में रहता है। You notice that all the advertisements in the TV are catered to young people, mostly to young people. और हम देखते हैं कि जितने भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, वो बच्चों को और नौजवानों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। So this verse of the Bible shows how precious children are to God, not only to us, but especially to God. और ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की नजर में हमारे बच्चे, हमारे संतान कितने बहुमूल्य हैं। When you come to the words, और जब आप इस बारे में सोचते हैं, these children belong to God. और ये बच्चे किसके लिए हैं? ये बच्चे परमेश्वर के लिए हैं। But He has given us a privilege to take care of them. और परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्यता दिया बच्चों का देख रेख करें। Because one day we have to stand before God, क्योंकि एक दिन हमें परमेश्वर के आगे खड़ा होना है, especially as a father or as parents. खासकर एक माता पिता के तौर पर। Dear Lord, these people that you gave me, they are I raised. परमेश्वर आपने जो संतान मुझे दिया है, मैं आपके पास एक बार पुनः लेके आता हूँ। Jesus said, ये जीवन पाए और you know what that means? इसका अर्थ क्या है आप समझते हैं? That means at every stage of your child,
आपके बच्चों का हर एक पड़ाव is fully lived, हर एक पड़ाव जीवित हो। When they are babies, they live like babies. इनके हर एक पड़ाव में वो पूर्णता से जीने पाए। जब वो छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों की तरह, As children, they live to the full like children. और जब वो थोड़े बड़े हो जाए तो उनके जैसे, As young people, they live fully like young people. और जब वो जवान हो जाए तो एक जवान व्यक्ति के अनुसार, And as adults, they will live fully like adults. और जब वो मैच्योर हो जाए, जब बड़े हो जाए तो एक एडल्ट के जैसे जिए। That is an abundance. और यही है पूर्णता का जीवन। But nowadays it's not like that. लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। You become babies only for a month or 2 months. हम साथ तब तक ही रहते हैं जब 1, 2, 3 महीने के होते हैं, And after that, they grow so fast. और उसके बाद वो बहुत ही जल्दी वो बच्चे बढ़ने लग जाते हैं। And when they're still children, और जब वो छोटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं, they are trying to behave like teenagers. और वो टीनेजर्स के जैसे, जो जवान है उनके जैसे स्वभाव करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं। You know, my best in the feminine magazine, मैंने फैमिली मैगजीन में पढ़ा है, one mother, एक माँ she took her 10-year-old child, daughter, to a beauty parlor. वो अपने 10 साल की उम्र की बेटी को लेकर ब्यूटी पार्लर में जाती है। So this 10-year-old girl said to the beautician, और ये 10 साल की छोटी बच्ची उस ब्यूटिशियन से कहती है, cut like this, cut like this. आप किस तरह से मेरे बालों को काटे, किस तरह से मेरे बालों को काटे। And then, when the haircut was done, और जब उसके बालों को काट दिया जाता है, you know what she asked her mother? और वो अपनी माँ से पूछती है, You'd be surprised what she asked her mother. You'd be surprised what she asked her mother. आप आश्चर्य हो जाएंगे उसके शब्दों को सुनकर। She stood up, she told her mom, Mom, like you look sexy now. वो खड़ी होती है और अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी, माँ क्या मैं बहुत ही सेक्सी दिख रही हूँ? 10 years old. 10 साल की बच्ची। So nowadays there is what they call as a pseudo adults, false adults. हम इसे कह सकते हैं कि ये छोटे बच्चे इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे कि वो बड़े हो गए। So nowadays, you know, like during our days, people step by step, we enjoy every stage of being a child, a teenager, a young woman. विकसित हो जाते हैं, हर एक पड़ाव को एंजॉय किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। But you know, nowadays, even at the age of 12 years, 13 years, they will become mothers. जबकि आजकल 12 या 13 साल की बच्चे ही माँ बन जाती है। So this is something that is, you know, a pressing need for parents to spend more time with their children. इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसा माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। Now here is a saying, it says, children are travelers just arrived in a strange country. इस प्रकार से कहा जाता है कि बच्चे एक यात्री है जो एक नहीं जो जिस कंट्री को, जिस देश को वो नहीं जानते, अनजान देश में यात्रा करते हैं। बच्चे इस प्रकार के यात्री हैं। See, when travelers, when tourists, they come to Sirri, मान लीजिए जब कोई यात्री किसी स्टेट, उनको हमारे सुझाव की आवश्यकता है so that they don't get lost in this world. ताकि इस संसार में वो खो ना जाए। But sad to say nowadays, लेकिन दुख की बात है, with the coming of the internet, इंटरनेट
आ जाने के द्वारा our children have been guided by the YouTube. आजकल हमारे बच्चे YouTube के जरिए And गाइड किए जाते हैं and the internet. इंटरनेट में। So जी नहीं पाते अपने हर एक पड़ाव में। please remember this, parents. You are the best guide for your children. इसीलिए एक माता पिता होने के नाते आप लोगों को ये याद रखना है कि अपने बच्चों के लिए आप एक असल माइक हैं। And for those of you who still have young children, this world is a strange और जिनके बच्चे अभी भी छोटे हैं, उनके लिए ये देश एक अनजाना देश है। That's why I spend more time with them. इसीलिए अपना समय अपने बच्चों को साथ आप बिताएं। Not be living in the world. लेकिन हम इस प्रकार की दुनिया या संसार में जी रहे हैं जहाँ माता पिता Live in a very, very busy schedule. बहुत ही व्यस्त हैं अपने कामों में। No, one day, one family asked me to come to their place. एक परिवार ने मुझे आमंत्रित किया उनके घर जाने के लिए। I asked them why. मैंने उनसे पूछा क्यों? They said, please come and counsel our 10-year-old son. उन्होंने कहा कृपया करके मेरे घर आए और मेरे 10 साल के बच्चे के साथ काउंसलिंग करें। So I went. तो मैं वहाँ गई। The parents were not there, उनके माता पिता वहाँ नहीं थे, but the grandmother was there. दादी उनके साथ। So she said, I want you to counsel my 10-year-old grandson. उसकी दादी ने कहा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे 10 साल के नाती के साथ बातचीत करें। So I asked her, what's the problem? मैंने उनसे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? She said, he's stealing money from everyone who comes at home. And or anyone who comes home, leave their bags and all that, so they go, he'll steal all their money. तो उसकी दादी ने कहा कि मेरे पोते में आदत है जो कि वो क्या करता है हर किसी के पर्स से पैसे चुराता है, चाहे वो मेहमान हमारे घर में कोई आए या उसके खुद के माता पिता। He steals mobiles. वो मोबाइल चुराता है He goes to the market and sells those mobiles. और वो बाजार में जाके उन मोबाइल्स को बेचता है At a very cheap price. और बहुत ही सस्ते दाम में। So I asked the grandmother, I said, where are his parents? मैंने उनकी दादी को पूछा कि इनके माता पिता कहाँ हैं? She said, oh, they're so busy. उन्होंने कहा कि वो तो बहुत ही व्यस्त है। They come home, especially the mother will come home at 9 o'clock, 9:30 at night. उसकी माता बहुत ही व्यस्त है, वो रात को 9 या 9:30 बजे आती है काम से। So the grandmother said, I'm quite simple. I don't know how to take care of the different issues that he has. उस स्त्री ने मुझसे कहा कि उसकी ग्रैंडमदर ने दादी ने कि मैं बहुत ही साधारण स्त्री हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस प्रकार से संभालूं या सिखाऊं। Parents are too busy. क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही व्यस्त हैं अपने काम में। Then I'll tell you another experience I had in one family. मैं और एक अनुभव आपके साथ बांटना चाहूंगी। One day the mother brought her 8-year-old son. एक दिन एक माँ अपने 8 साल के बच्चे को लेकर मेरे पास आई। She said, please counsel my son. उसने कहा कृपया करके मेरे बेटे के साथ आप बातचीत करें। He doesn't study well. वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता And some other problems. और उसे अन्य दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं। And when the counseling was over with the son, जब मेरी बातचीत उस बच्चे के साथ पूरी हो गई, you know what the mother said? और उसकी माँ ने क्या कहा? She said, actually, I have come for myself to be counseled. असल में मैं अपने खुद के लिए भी आई ताकि मैं आपसे बातचीत करूं। I said, I asked her, what is your problem? मैंने उनसे पूछा आपकी समस्या क्या है? She said, after work, she was in office. उसने मुझे बताया कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ। She said, after work, my friends would always ask me to accompany them. मेरे काम खत्म हो जाने के बाद मेरे मित्र मुझे उनके साथ बैठने के लिए बुलाते हैं, उनके साथ समय बिताने के लिए बुलाते हैं, And we'll have fun with them. ताकि हम मिलकर मनोरंजन अपना कर पाए।
And I said, can't you say no? Can't you say no, I can't go? मैंने उनसे कहा क्या आप ना नहीं कह सकते लोगों को कि मैं नहीं जा सकती? She said, no, they forced me to go. उसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर पाती क्योंकि वो मुझसे जबरदस्ती करते हैं कि आओ। So it has become a habit for her to accompany to go with her friends out to work every day. इस तरह ये मेरी एक आदत बन चुकी है अपने मित्रों के साथ काम के बाद बाहर जाना। So what you do? आप क्या करती हैं? Sometimes they need some men. कभी They कभी need some men. कभी उन्हें पुरुषों की आवश्यकता होती है। So you see, the real problem here is not with the child. The real problem is the mother. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो असल समस्या थी उसके बेटे के साथ में, उसके माता के साथ। It's not more. इस तरह बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। Our children here. आज हमारे बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है। I know these things happen here. Or not, I don't know. But there was another incident, another thing that happened. मैं नहीं जानती इस तरह की घटना यहाँ होती है या नहीं, लेकिन इस प्रकार का घटना और एक हुआ था। One mother brought her daughter to me. एक माँ अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आई। She was, she was in class 12. और वो लड़की क्लास 12 में पढ़ रही थी। And of course, the daughter said, I want you to come to me alone. I don't want my mother to be here. उनकी बेटी जो क्लास 12 में पढ़ रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप अकेले मेरे साथ बातचीत करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इसमें शामिल हो। So I asked the mother to leave, to go and sit in another room in my house. इसीलिए मैंने उनकी माँ को कहा कि आप उससे रूम में जाकर बैठे। This girl said, "Ma'am, I was molested by my father." उस लड़की ने कहा कि मैम मेरे पिता ने मुझसे दूर व्यवहार किया है। But when I told my mother about this, my mother does not believe. और जब मैंने उसकी माँ को इस बारे में बताया तो उसकी माँ ने इस बात को नहीं माना, विश्वास नहीं किया। In fact, he said, my mother scolded me for not respecting me. उसने कहा कि मेरी मम्मी मुझे डांटती है जब मैं अपने पिता का आदर नहीं करती। She said, the mother said, you have to hug your father when he goes out and things like that. क्योंकि उसकी माँ उसे कहती थी कि जब तुम्हारे पिता घर से बाहर जाते हैं, एक बेटी होने के नाते तुम्हें अपने पिता को गले लगाना चाहिए। She said, I cannot do that. और उसने अपनी माँ को कहती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। I know. क्योंकि मैं जानती हूँ वो कैसे। Sit down. Endless, I could tell you. But our children definitely need protection, even from their own uncles, own fathers, own brothers. इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे अनुभव है बच्चों के जो हो रहे हैं। इसीलिए आज हमारे बच्चों को आज अपने के अंकल से या फिर कोई रिश्तेदार से सुरक्षित रखना हमें जरूरी है, सतर्क रहना हमें जरूरी है। That's why as tourist guides, we parents should guide our children to Jesus Christ. इसीलिए एक टूरिस्ट गाइड के नाते हमें अपने बच्चों को असल शिक्षा देना जरूरी है, गाइड करना जरूरी है। And never leave your children too long at home. और अपने बच्चों को अकेला लंबे समय तक ना छोड़ें। You know, Jesus is our ark today. आज यीशु हमारा जहाज है। Jesus is the ark. यीशु हमारा जहाज है। And let me tell you another thought. Remember, first time I said that, in the morning I said, Noah did everything that God asked him to do to build the ark. पहले सेशन में मैंने आपसे बांटा था कि नोहा ने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था उस जहाज का निर्माण करने के लिए। Another aspect I want to bring to you. और उसका
भाग में बताना चाहती हूँ। You know, Noah did not build it. इस जहाज को बनाने के लिए नोहा ने अपने विचार से इस जहाज को नहीं बनाया। He involved his wife and his children. इस जहाज को बनाने के लिए नोहा ने केवल स्वयं ही काम नहीं किया, उसने इस जहाज को बनाने के लिए अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी कहा। So the whole family were involved in building it. इसी प्रकार वो सारे परिवार मिलकर इस जहाज का निर्माण किया। I know there are many families where the parents are very godly, religious, and things like that, but they beat their children. मैं ऐसे बहुत से परिवार को जानती हूँ जहाँ उनके माता पिता बहुत ही रिलीजियस है, धार्मिक है, लेकिन उनके बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं। Get your children involved. आपके बच्चों को आप भी अपने काम जहाँ काम करते आप जहाँ जा रहे तो वहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाए साथ में। When you have a family prayer at home, जब आपके परिवार में कोई प्रार्थना होता है, get your children involved in the family prayer. आपके बच्चों को आप उस प्रार्थना में शामिल करें। Don't do it alone. अकेले ना करें। You know, let me tell you this. The success of every Christian home is delegation. जब एक असल सफल ईसाई परिवार तभी असल होता है जब उस परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग होता है। See, when Jesus into wine, जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, he did not do everything himself. उसने सब कुछ खुद से स्वयं से नहीं किया। He asked the disciples, what will this family do? उसने अपने शिष्य से पूछा कि इन परिवार के पास कौन सी सामग्री है। The disciples said, oh, they have 6 big jars. Water jars. उनके शिष्य ने कहा कि उनके पास 6 बड़े-बड़े जार हैं। And so he said, fill up those 6 jars to the brim with water. और यीशु ने उनके शिष्यों से कहा कि आप क्या करें, उन जारों को ऊपर तक पानी से भर दें। And then Jesus converted that water into wine. तब जाके यीशु ने उस पानी को दाखरस में बदला। What I'm trying to tell us here, मैं इस बात से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, Jesus showed them that delegation is a very, very important role played at home. यहाँ यीशु हमें ये दर्शाते हैं कि एक दूसरे के सहयोग के कारण हम कोई भी काम कर सकते हैं, अपने घर का निर्माण कर सकते हैं, असल में। Jesus could have done everything himself. The one who was filled them with water could have done that. यीशु चाहते थे वो अकेले खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। But the things that the disciples could do, Jesus asked them to do. वो चीजें जो उनके शिष्य कर सकते थे, यीशु ने उनसे वो काम कराया। But the things that they cannot do, changing the water into wine, that Jesus did. और वो चीजें जो वो शिष्य नहीं कर सकते थे, उस पानी को दाखरस में बदलना, वो यीशु ने किया। That's why in our family life, get the children involved, delegate them certain things that they can do. इसीलिए अपने पारिवारिक घरों में आप क्या करें, अपने बच्चों को हर एक काम में इन्वॉल्व करें, अपने साथ सहयोगी रखें। So in that way, you build together, you get that Noah, got the children involved, his wife, I'm involved in building the ark. इसी प्रकार जैसे नोहा ने अपने पत्नी को, अपने बच्चों को इस जहाज के निर्माण के लिए सहयोगी के रूप में इस्तेमाल किया, आपका परिवार भी इसी प्रकार सहयोगी में और एकता में रहेगा। Therefore, even in the household, get the children involved. Sometimes in the praise and worship before me, in your family prayer, the children, everyone. इसीलिए आज हमें ईसाई परिवार होने के नाते अपने बच्चों को आराधना में, पारिवारिक प्रार्थना में इन्वॉल्व करना जरूरी है। And you know what? Jesus was with you at that life. यीशु कहते हैं, मैं सत्य, जीवन और मार्ग हूँ। I remember one pastor in a church when he said, push everyone into the boat
push everyone into the ark. हमारे यहाँ मास्टर है जो कहते हैं कि हर एक किसी को उस जहाज में डाले, हर एक किसी को उस जहाज में डाले, There they are safe. तब जाके वो सुरक्षित रहेंगे। I'm not supposed to share this, but let me share. You know, when this Noah's Ark was floating in that flood, जब नोहा का वो जहाज पानी में तैर रहा था, do you think it was flowing smoothly? क्या आपको लगता है कि वो बहुत ही स्मूथ था या फिर स्पीड था? No. नहीं, The ark was tossing water. The flood was so strong. The underwater current was so strong. So the ark must have been, rocking in that flood. नहीं, क्या था कि जब वो बाढ़ इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो जहाज है वो यहाँ से वहां डोल रहा था पानी। So what I want to say here is that even in our Christian homes, the best Christian homes, there are times we will be rocked by trials, the trials of this world. ये कहना चाहते हैं चाहे आपका परिवार क्रिश्चियन केंद्रित परिवार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में कितने बार ऐसी परिस्थिति आती है जिस प्रकार से वो जहाज वहां डोलता है, हमारे जीवन में भी समस्याएं इस प्रकार का सिचुएशन बना देती है। I'm sure there is that there are times when they fell because of the, when the boat is being rocked, they fell, they hurt themselves, but they helped each other to, and to do the work that they have to do. मुझे लगता है जब वो जहाज यहाँ वहां से डोल रहा होगा, तब वहां पे जो बैठे जितने भी लोग थे वो भी उनके साथ यहाँ वहां गिर रहे हैं। So that's where we live together as a Christian home, as a Christian family. इसी प्रकार आज हमें भी अपने घर को उस जहाज के नाई बनाना जरूरी है। That is where people learn to help each other, lift each other, in the midst of trials. जहाँ हम एक दूसरे की सहायता कर सके। Okay, there are three things parents should know of parenting. ऐसे तीन बातें जो माता पिता अपने नाक में जानना जरूरी है। In Ephesians chapter 6, verse 4, इफिसियोस का 6 अध्याय और 4 पर don't provoke. Don't provoke. अपने बच्चों को ना उकसाएं। In fact, it says, fathers, don't provoke your children. यहाँ इस पद में लिखा गया है कि पिताएं अपने बच्चों को ना उकसाएं। Many times fathers have a way of provoking the children. बहुत बार हम देखते हैं कि घर के पिता बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं या उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। Sometimes my husband will tell the children, when we were young, we didn't have all these toys. When we were young, we do this, that. So it makes the children कितने बार एक पिता होने लायक अपने बच्चों को कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे समान का था, तुम्हारे उम्र का था, तो मेरे पास ये खिलौने नहीं थे, ये सुविधाएं नहीं थे जो आज मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। Comparison can really provoke your children's anger. जब आप अपने बच्चों में और अपने आप में तुलना करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें आपके बच्चों को क्या करता है, उकसाता है। Comparing our generation and this generation now, we are way. आपके जनरेशन को और बच्चों के जनरेशन के साथ तुलना करना गलत होगा, क्योंकि बहुत ही दोनों जनरेशन में बहुत ही भिन्नता है। You know what is the best way to bridge the gap with your children? सबसे अच्छा सुझाव क्या है जिसके कारण आप उस अलगाव को दूर कर सकते हैं? The best thing is to have a sensitive spirit and understanding. वो है कि आप अपने बच्चों को असल प्रकार से समझें, उनके विचारों को समझें और उनके साथ अपना वास्ता करें अपने बच्चों का। Sometimes we feel that it is technology that is separating us, we and the children. कभी-कभी हमें लगता है आजकल की तकनीकी चीजों ने हमारे बच्चों को हमसे दूर कर दिया।
It's not technology that is separating what is better. It's creating a generation gap. It's not technology. ये तकनीकी विकास नहीं है जो हमें और हमारे बच्चों के बीच में अलगाव लाता है, But it's not understanding. और एक दूसरे को ना समझना। You know, my eldest son Timothy, मेरा बड़ा बेटा timothy, he said, told me, he said, everyone calls me, everyone tells me I'm just like God. वो कह रहा था कि सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपने पिता के जैसा दिखता हूँ और पिता के जैसा ही हूँ। So he said, maybe it's true. मैंने उससे कहा हो सकता है ये सही है। And he came up to me, he said, baby, that is mom. वो मेरे पास आया, माँ There's one thing that I need from you. एक ऐसा चीज मैं आपसे चाहता हूँ, I want to be understanding at you. मैं आपकी जैसा Understanding. समझदार, समझने वाला, एक दूसरे का वास्ता करने वाला बनना चाहता हूँ। You are so understanding men. आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझते हैं I want that quality from you. और यही गुण मैं आपसे चाहता हूँ। So, therefore, you know, of course, we mothers also provoke, but more than that, I think parents, that's why there it says, fathers, don't provoke your children. ऐसा एक माँ होने नाते कभी कभी मैं भी बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, लेकिन ज्यादातर जो पिता करते हैं वो ज्यादा बच्चों को पीस दिलाते हैं। You know, they also need protection. In Psalm 128, they are like young olive shoots. They need protection. ये हम यहाँ भजन संहिता 128 में पाते हैं कि उनको भी सुरक्षा का जरूरत है। इस प्रकार एक जैतून के पेड़ को सुरक्षा का जरूरत है, उसी प्रकार आज हमारे संतानों को भी सुरक्षा का जरूरत है। You know, these young, tender olive shoots, they hide, you know, underneath the mature leaves. जो नर तना होता है जैतून का, वो जो पत्ते मैच्योर हो जाते हैं उसके नीचे नीचे रहते हैं। No, before my children went out for further studies, just after their class 11, 12, जब मेरे बच्चे 11-12 पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए, I had to say a lot of things to protect them. I had to say a lot of things to them. मैंने उन्हें बहुत सारे बातों और सुझाव दिया कि किस प्रकार से वो अपना सुरक्षा करें। I didn't want my children to be simple because they're rather simple. मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे साधारण रहे। I had to tell them about a lot of things that are going on in the world. मैं उन्हें बताना चाहती थी कि इस संसार में बाहर में घर के बाहर किस प्रकार का माहौल है। One thing I told them about this gay life. और एक चीज जो मैंने उन्हें बताया वो था संबंध के बारे में। Because this gay life is very common in hostels because they would be living in hostels. और ये समलैंगिक संबंध जो हॉस्टल में ज्यादातर होते हैं क्योंकि वहाँ उन लोग एक ही लिंग के व्यक्तियों के साथ बैठते हैं और उठते हैं। I had to be open with them about a normal sex and abnormal sex between, you understand, homosexuals and heterosexuals. I had to make them understand. मुझे उनके साथ खुल के बात करना पड़ा कि साधारण यौन संबंध और असाधारण यौन संबंध में क्या अंतर है। So I don't want to spend too much on this, but I want us as parents, we've got to protect our children by telling them truth about what is going on in the world. हमें अपने बच्चों को सत्य बताना जरूरी है कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। Another thing is that in Psalm 127 it said, children are like arrows. भजन संहिता 127 बताती है कि बच्चे एक तीर के समान हैं। Where these arrows go depends on whose hands they are. ये तीर उसी दिशा में जाएंगे जो इस तीर को चलाता है। You know, if these arrows are in the hands of an expert, अगर यही एरो किसी एक्सपर्ट के हाथ में है,
These arrows, when they are shot, they will reach the targets. और ये arrow किसी अनुभवी के हाथ में है तो ये तीर अपने सही स्थान पे जाके लगेगी। But when these arrows are in the hands of people who don't know how to handle them, they can fly anywhere and hurt people. और यही तीर जब किसी अनुभवी इंसान के व्यक्ति के हाथ में होगा तो ये तीर कहीं भी जाकर लोगों का नाश करेगा। So if our children are in the hands of godly parents, our children reach the targets. The plan that God has for them, as in Jeremiah 29 verse 11. यिर्मयाह उसका 27वां पद और 27वां अध्याय और 11 पद के अनुसार अगर माता पिता परमेश्वर में केंद्रित है तो उनके बच्चे उस तीर के समान होंगे जो सही दिशा में चलेंगे। But if our children, if the children are in the hands of ungodly parents, and parents who do not know how to do the parenting, those children are wild and uncontrolled. और ऐसे तीर जो एक अनुभवी और परमेश्वर से दूर माता पिता के हाथ में ऐसी संतान है तो वो संतान आगे चलकर अपने जीवन का नाश कर देगी। So don't be too happy when your children are simple. They need to be educated. जब आपके बच्चे सीधे साधे और साधारण हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को सत्य का ज्ञान दें। And remember, your children are like arrows. Where they go, they tend to hurt your parents. और आपके बच्चे उस तीर के समान है जो आपके हाथ में और वो वही जाएंगे जहां आप जिस उस तीर को जिस दिशा में चलाएंगे। And there's a saying we said, spare the rod and spoil the child. इनके वचन 13 अध्याय और 24वां पद ये कहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है 24वां पद, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। You know, Proverbs 30:4 says, use the rod sometimes, but they go children. नीति वचन ये हमें यह बताती है कि कभी-कभी आपका छड़ी उठाना सही है अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। But that is up to a certain age. वो भी कुछ उम्र तक। Up to a certain age, you can spank them. कुछ उम्र तक आप उन्हें मारकर सुधार सकते हैं। That's one of the best methods. Discipline your children is good communication. और बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं वो है बातचीत के द्वारा। आप अपने बच्चों के साथ बातचीत करें। Which is found in Proverbs 18, verses 30, 12, 30, and then 12, verse 18. और वो हम पाते हैं नीति वचन 18वां अध्याय 13वां पद और 12 अध्याय 18 पद। I find from my personal, personal experience, good communication is so good to discipline. मैं अपना खुद का अनुभव बताऊंगी कि जब आप अपने बच्चों के साथ अच्छा बातचीत रखते हैं तो वो आपके बच्चों को आगे चलकर एक डिसिप्लिन व्यक्ति के रूप में आगे ले चलता है। Don't shut them with something wrong. If there is something wrong, don't shout, don't beat. The best thing is sit with them. जब वो कुछ गलत करे आपके बच्चे तो आप उन पे ना चिल्लाएं और ना ही मारें, आप उनके साथ बैठ कर बात करें। Suppose you heard that there has been a fight in school. हो सकता है आपने सुना होगा कि आपके बच्चे स्कूल में जाके लड़ रहे हैं And your child is involved. और आपका बच्चा भी उस लड़ाई में था। When he comes home, और जब वो वापस घर आता है, well, it's human for us to say, I heard that you fight. But you fought in school. साधारण तौर पर अगर हम देखें तो हमारा व्यवहार होता है, मैंने सुना है तुम झगड़ा करके आए हो, तुम लड़ के आए हो। Lesson would be and say, come son. Let's sit. I just heard that there was a fight in school. इसके बदले अगर आप कहें कि आओ बेटा या बेटी आप बैठो मेरे साथ हम बात करें, तो मैंने सुना है आपके
स्कूल में आपके साथ झगड़ा हुआ है, Now tell me what. अब मुझे लगा कि आपकी बात क्या है, क्या हुआ है? Tell me your side of the story. आप मुझे बताएं अपने तरीके से कि क्या हुआ है। So see, और यहाँ से हम देखेंगे कि वो बच्चा आपके साथ बातचीत करेंगे and here you can counsel. और आप उसे सुझाव दे पाएंगे। But the problem these days, as I said, because of the busy schedules of parents, no time to communicate with the children. लेकिन समस्या यह है कि आजकल माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त है कि वो अपने बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर पाते और कोई कम्युनिकेशन आपस में नहीं रहता। I know some of my children have gone outside other states to study or to work. और मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे दूसरे स्टेट्स में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। God has given us a mobile phone. आप लोगों को परमिशन मोबाइल फोन मिला, Please communicate with them as much as possible. आप लोग बात करें। Okay. Here is something that this is a good relational style of parenting, and I call them the 4 C's. यहाँ पे किस प्रकार से बच्चों को बड़ा करना है, इस बारे में मैं शायद ऐसे बीज हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। For those of you who still have children 1 to 7 years, वो माता पिता जिनके बच्चे 1 से 7 साल के बीच में हैं, 1 to 7 years for them is the age of experiment, the age of exploration. और ये वो एज है जहाँ बच्चे एक्सप्लोर होना चाहते हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं अपने आसपास के वातावरण में। So this is the age when you have to control. और यही वो एज है जहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं। But the problem with us is that most of the time when we control, we say, don't do this, don't do that. और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम ये मत करो, वो मत करो, इस प्रकार से। See, it's not only about don't, but do this instead. ये मत करो के बदले आप लोगों को कहना है कि बेटा आप इस प्रकार से करो। So 1 to 7 years is the age of control. इसीलिए 1 से 7 साल के बच्चों का एज कंट्रोल किया जा सकता है। Because this is the age when everything is so new to them. They want to touch, they want to put in their mouth, they want to do all sorts of things. क्योंकि ये वो समय है जब बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने आसपास के वातावरण को, क्या है ये, छूकर देखना चाहते हैं। 7 to 12 years is the age of inquiring. और 7 से 12 साल का जो उम्र है वो जिज्ञासु होते हैं बच्चे, इस समय में जानना चाहते हैं। That's why we call this age the age of coaching. इसीलिए हम इस एज को शिक्षा देने का एज कहते हैं। You know, 7 to 12 years, especially in this generation, they know a lot of things. आज इस अभी के जनरेशन के बच्चे 7 से जो 12 साल के बच्चे हैं वो बहुत कुछ जानते हैं। But many times what they know is very distorted. और वो जो चीज जानते हैं वो संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है वो जो जान रहे हैं। They know it, but it's distorted. वो जानते हैं पर उसका ज्ञान उन्हें पूरे तरीके से नहीं है उन चीजों के बारे में। I want to tell you about my life when I was a child. मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, I love to watch senior girls playing basketball. मुझे बड़े लड़कियों का बास्केटबॉल खेलते हुए देखना बहुत पसंद था। So whenever they finished with their game, I would run and take the ball and try to put it inside the baskets. जैसे ही वो लोग खेल के चले जाते थे तो मैं दौड़ के जाती थी और वो बास्केटबॉल उठा के उनकी ही तरह खेलना चाहती थी, खेलती थी। One day the coach of that school saw me doing that. और एक दिन उस स्कूल के कोच ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। He came up to me, he said, "You want to play basketball?" I said, "Yes, sir." वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, क्या तुम बास्केटबॉल खेलना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ मैं खेलना चाहती हूँ सर। So he told me, "Come early to school every morning, I'll teach you." और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से तुम क्या करो, सुबह सुबह स्कूल आने से पहले सुबह सुबह आओ स्कूल में और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। He saw that I had some idea of putting the ball inside the basket, but not the correct way.
उन्होंने देखा कि मेरे पास आइडिया है उस बॉल को बास्केट में डालने का, लेकिन वो सही नहीं था वो तरीका। कुछ तरीके हैं। So I would come really every morning quite early to school. उसके बाद मैं सुबह सुबह जल्दी स्कूल आना शुरू कर दी He taught me और उन्होंने मुझे सिखाया how to put the ball in the basket. किस प्रकार से उस बॉल को उस बास्केट में डालना चाहिए। And you won't believe that I was the best basketball player in the state. और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अपने स्टेट की बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। I was also the captain of the state. और मैं अपने स्टेट के कैप्टन भी रह चुकी थी। And we had to travel to some other states to play basketball. और इसके कारण हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स में बास्केटबॉल खेलने के लिए गए हैं। I will always be grateful for that coach. और मैं हमेशा से उस कोच की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया। He saw that I had some idea, but not the right way. उस कोच ने देखा कि मुझ में वो टैलेंट है, वो तरीका है, लेकिन वो सही प्रकार से नहीं है। But what I admire about that coach is that he took the time, even though he was a busy person, he took the time to coach me. लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उस कोच ने मेरे लिए समय निकाला उन तरीकों को सिखाने के लिए, सुधारने के लिए। And I learned it. और मैं सीखी। And you know what, those days, I'm not exaggerating, when there are tournaments in Shillong, the sports section would be full of my name. मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रही, जब उन दिनों में जब इस प्रकार का टूर्नामेंट होता था तो मेरे नाम पे हर जगह में मेरे नाम को जाना जाता था, प्रसिद्ध था मेरा नाम। So those of y'all who have children 7 to 12 years old, please, your children, they know a lot of things, but not the right way, very distorted. इसीलिए जिनके बच्चे हैं 7 से 12 साल के उम्र के, वो जानते हैं चीजों को, लेकिन उनका सही तरीका उन्हें नहीं पता है। 12 to 15 years is the age of sharing. और 12 से 19 साल का ऐसा उम्र है जहां वो बांटते हैं अपने विचारों को। I want to tell those of y'all who still have children between 12 to 18 or 19 years old. जिनके बच्चे 12 से 18 साल के बीच में है, this is a very difficult age, very difficult group. और ये ही वो एज है, उम्र है जो बहुत ही कठिन है। Because this group, sometimes they behave like children. क्योंकि इस उम्र के बच्चे कभी बच्चों की जैसा बिहेव करते हैं। Parents will scold them, why do you behave like children? और माता पिता उन्हें डांटते हैं कि तुम क्यों बच्चों की जैसा बिहेव कर रही हो। And sometimes when they behave like adults, the parents will say, why do you behave like adults? और जब वो बड़ों की जैसा बर्ताव करती हैं, तो हम माता पिता कहते हैं कि तुम क्यों बड़ों की जैसी बर्ताव कर रही हो, तुम अभी बच्ची हो। So they don't know who they are. इसीलिए ये उम्र के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि Who हम am लोग I? बड़े हैं या हम छोटे हैं। Who am I? हम कौन से एज में है, स्टेज में है, पड़ाव में है। So therefore, this is the age where you really need to counsel them. और यही एज है और यही उम्र है जहां आप लोगों को उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है। You know, actually, I always have one video to show, but I didn't put it here. You know, this group, 12 to 19 years, they are like, you know, they have their mood swings. 1 minute they are hee ha, 1 minute they are down and so dull and so glum. इस उम्र के बच्चों में मूड स्विंग होता है, उनके बर्ताव में बदलाव आता है, कभी वो खूब हंसते हैं तो कभी वो शांत हो जाते हैं। But they need so much of patience. Be patient with them. इसीलिए आप लोगों को धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है इस उम्र के बच्चों के साथ। Then 19 years and above, till about 35 years old. 19 से 35 साल के उम्र के बड़ों या बड़ों के लिए, this is a group that face the pressure of life. और यही वो ग्रुप है जो वास्तविक जीवन का प्रेशर अनुभव करते हैं, स्ट्रेस अनुभव करते हैं। You know they're pressured by what? One is career and one is life partner. पहला है अपने काम को लेकर और दूसरा है जीवन साथी को लेकर। This is the age group where you really need to take care of them. और यही वो एज है, उम्र है जहां आप लोगों को उनको अच्छे से समझना है और उनका ख्याल रखना है। This is the age group where you need to affirm them
that God has a plan for you as promised in Jeremiah 29:11. God has a plan for you. और इसी उम्र के बच्चों के साथ आप लोगों को कहना है कि यिर्मयाह 29:11 कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक असल प्लान है, योजना है। And that's why you have to show that you care. और इसी प्रकार आप दिखा सकते हैं कि मैं आप लोगों का ख्याल रखती हूँ और आपका वास्ता करती हूँ। You know what is the acronym of care? Acronym. और ख्याल रखना का दूसरा शब्द क्या है? और एक Okay, let me say. Care, the word care. C. Let's say C. What does C stand for? अच्छा, ये केयर जो शब्द है, ये इस शब्द में सी जो अल्फाबेट है वो क्या दर्शाता है? You know, this group of young people, 19 to 30 years, or they need to be challenged. Care stands for challenge. और वो जो सी वर्ड है, अल्फाबेट है, अक्षर है, वो चैलेंज को दिखाता है, चुनौती को। Challenge. चुनौती। Okay. And ए अल्फाबेट अक्षर क्या दिखाता है? affirm them. Affirm. That means you tell them that you are precious to God. You're precious to me. उन्हें ये Affirming एहसास them. दिलाना कि आप परमेश्वर के नजर में मूल्यवान हो, उनको मूल्य, उनका महत्व समझाना बच्चों की, कि उनका महत्व कितना महत्व है उनका। Because this is the time when this group of young people will think nobody cares about me. You know? इस समय के इस उम्र के बच्चों को कितने बार ऐसा ख्याल आता है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। That's why you need to say God cares for you. इसीलिए आपका कहना जरूरी है कि परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपका वास्ता करता है। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। And the next one is R. What is R? और जो आर अक्षर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Respect them. आदर करें, आप उनका सम्मान करें। Respect your children. अपने बच्चों का आदर करें, सम्मान करें। Respect what they share. आदर करें वो जो आपके साथ वो जो बात करना चाहता है, वो जो बता रहा है, आप उन चीजों का आदर करें जो आपके बच्चों के पास है। Sometimes, you know, when our children share with us, our parents, we say, oh, that is nothing. कभी कभी हमारे बच्चे हमारे पास आके अपने अनुभव को बताते हैं और हम उनसे कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। For you, parents, it's nothing. It's a small problem. But for them, it's a big problem. हो सकता है एक माता पिता होने नाते वो चीजें आपके नजर में कुछ भी नहीं, लेकिन उनके नजर में वो बहुत ही बड़ा होता है उन चीजों का अनुभव। So respect their sharing. इसीलिए वो आपके साथ वो जो कुछ भी बात करते हैं उन बातों को आप आदर पूर्वक सुने और सम्मान दे। Which means listen attentively. इसका अर्थ यह है कि अपने बच्चों को असल प्रकार से ध्यान से आप उनकी बातों को सुने और समझे। Don't interrupt when they're talking with you. जब वो आपसे बात करते हैं तो आप बीच में उनके बातों को ना काटे। And the next one is E. और जो लास्ट है वो है ई शब्द। Continue to encourage them. हमेशा उन्हें उत्साहित करें, हर एक चीज के लिए उत्साहित करें। Encourage them and enjoy your time with them. और उत्साहित करें और उनके साथ वो समय को आप एंजॉय करें। Because very soon our children will fly out of the nest, put out their wings and go far away sometimes. क्योंकि जल्दी ही आपके बच्चे एक पक्षी के नाय अपने पंख फैलाकर अपने काम में या अपने परिवार में जल्दी ही व्यस्त हो जाएंगे। So therefore, as long as God is giving you time to enjoy with them, enjoy with them. इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये सुंदर समय दिया है अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने का। So this is about how to handle the 19 years and above. और यही है आप 19 से ऊपर के बच्चों को किस प्रकार से आप उन्हें So संभालें। I call this parenting
the 4 C's. और इसीलिए इस पेरेंटिंग के लिए ये एक 4 ऐसे बीज है जो अपने बच्चों में आप बो सकते हैं। Control, कंट्रोल करें, coach, उनका नेतृत्व करें, counsel them, उन्हें सुझाव दें and care. और उनका ख्याल रखें। Yes, these are the young people, okay? The group I was just talking about. They have this is a very precious group. Think about their career and they think about their life partner. ये बहुत ही स्पेशल ग्रुप है क्योंकि ये समय वो अपने काम के बारे में और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। I wish I had time to talk about how to find a life partner, but I think I'll drop that for now. मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ बांटूं कि किस प्रकार से अपने जीवन साथी को चुने, लेकिन मैं अभी वो उस बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगी। Remember that this is the age, you know what, of young people. They call this age the sexual generation. ये वो उम्र है जहाँ ये बच्चे शारीरिक रूप से संपन्न हो जाते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। So what do we do as parents? और एक माता पिता होने नाते हमारा कर्तव्य क्या है? I know some parents feel very shy to talk about this topic. और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे माता पिता यहाँ इस बारे में बात करना अपने बच्चों के साथ सही नहीं समझते। But you know, this topic is very important to the young people. They want to listen. They want to know how to handle it. और लेकिन ये विषय बहुत ही जरूरी है ताकि वो जान पाए कि आगे के जीवन में वो अपने जीवन को किस प्रकार से कंट्रोल करे। That's why, you know, if the parents can't do it, I think the church should take the responsibility to conduct a seminar or a retreat on this human sexuality. इसीलिए अगर माता पिता इस बारे में बात ना कर पाए तो मैं चर्च से आग्रह करती हूँ कि आप अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताएं। Because when you give them a good sex education, it inculcates responsible behavior. क्योंकि जब अपने बच्चों को आप सही यौन शिक्षा के बारे में बताते हैं तो वो आगे चल के उनके जीवन निर्माण में असल रूप से काम करता है। Because in that way they'll say that if I mishandle this issue, you know, I'm responsible for it. क्योंकि अगर इस विषय को मैं बता नहीं पाऊं अपने बच्चों को तो मैं गैर जिम्मेदार बनती हूँ। And sex education also is just like preparing your children for marriage one day. और यही वो विषय है जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं तो हम अपने बच्चों को शादी उनकी विवाहित जीवन के लिए तैयार करते हैं। So therefore, इसीलिए I have spoken to so many young people, hundreds of them. मैंने बहुत से नौजवानों के साथ बातचीत किया है इस विषय में। This is the area where they find it so difficult. और यही एक ऐसा एरिया है या विषय है जहां वो उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। In fact, I asked some of them. और इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा भी है बहुत नौजवानों से इस विषय के बारे में। When you have a boyfriend and a girlfriend, how long does it take for you to sleep together? मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि जब एक आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे तो आप लोगों को कितना समय लगा एक दूसरे के साथ सोने के लिए? Sometimes, you know what they told me? Sometimes the first day itself, let me go out. वो लोग कभी-कभी मुझे उत्तर देते हैं कि पहले ही दिन में। Sometimes maybe a month. कभी-कभी वो लोग मुझे कहते हैं एक महीने में। That's why they said most of us are not virgins anymore. इसीलिए उन लोग कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग अब भी वर्जिन नहीं हैं। You know, this is such a sad affair. ये बहुत ही दुख की बात है। And if parents don't teach your children, nobody will, because the world will teach them something that is all wrong. क्योंकि एक माता पिता होने नाते अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो संसार उन्हें गलत शिक्षा की ओर ले जाएगा। See, yesterday, परसों ही, no, it wasn't yesterday, day before yesterday. Yesterday I was on my way to Siliguri.
Day before yesterday, I met a person who said that most of the students who come and study in Shillong, they rent places, they rent small places. एक व्यक्ति मुझे मिले थे यहाँ आने से पहले, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चे जो शिलोंग में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो किराए में घर लेते हैं. Some of them live like they said, they tell the owner, this is my brother or this is my sister. और वहाँ लड़के और लड़कियां ये कह के रहती हैं कि ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है. But in most cases, it's not like that. और ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता. It's boyfriend and girlfriend living in a live-in relationship. और एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड बिना शादी के करार में बंधे वहां रहते हैं. They lie. The students lie. वो झूठ बोलते हैं. वहां पे आने वाले स्टूडेंट्स झूठ कहते हैं. So this is something that parents, I know it's a very tough subject, but you need to teach your children on this area. मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही कठिन विषय है एक माता पिता होने नाते आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस विषय में भी बात करें. I think if you can't do it, then the church should take up the responsibility to train these young people. और To अगर teach आप these young people. स्वयं इस काम को नहीं कर पाते तो मैं चर्चों से आग्रह करती हूँ, अनुग्रह करती हूँ कि आप इस विषय में यूथ से जो जवान हैं उनसे बात करें. You know, homosexuality is so common, so common in Shillong. I don't know about Siliguri, but homosexuality is आजकल so शिलोंग में समलिंगिता संबंध बहुत ही साधारण हो गया है. You know, one thing about a friend of mine, a friend, एक चीज मेरे मित्र के बारे में बताना चाहूंगी. she said, one lady came to her उसने कहा एक लेडी एक स्त्री मेरे पास आई and she told my friend, और my son has got a girlfriend. और उसने मुझे आकर कहा कि मेरे बेटे की एक गर्लफ्रेंड है. So you know what my friend did? She said, praise the Lord. और मेरे दोस्त ने क्या कहा आपको पता है? प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रशंसा हो. The mother said, I'm telling you that I have a problem. My son is having a girlfriend. And you say, praise the Lord. मैंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होता कि तुम्हारे बेटे का गर्लफ्रेंड है सुनकर? Said, praise the Lord, your son is not a homo. तो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड कि तुम्हारा अच्छा है कि तुम्हारा बेटा कोई समलैंगिक रिश्ते में नहीं बंधा है. So nowadays, you know, mother said, when we see our sons, they don't have any girlfriends, but only boyfriends, we are really scared. Really scared. तो देखते हैं कि इसी प्रकार कितने हम जैसे माता पिता डर जाते हैं इस विषय को सोचकर कि कहीं हमारे बच्चे भी इस प्रकार से ना हो जाए. Because homosexuality is a normal sexual behavior. क्योंकि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो असाधारण बिहेवियर है, स्वभाव है. This is something that I really taught my sons before they went out to study. और यही खासकर मैंने इन विषयों के बारे में अपने बेटों से बात किया जब वो बाहर पढ़ने जा रहे थे. And sometimes, you know, I organize a small party for him to call his, you know, all his classmates and all that, to have a healthy, you know, relationship, to have a healthy get together. इसीलिए मैं कभी-कभी क्या करती हूँ कि अपने बेटे को कहती हूँ कि अपने दोस्तों को घर में लेके आए और उनके लिए छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि हम मेरे बेटे के दोस्तों को मैं असल प्रकार से जानने पाऊँ. See, the Bible is so much against homosexuality. In Genesis 19 verses 1 to 13, Leviticus 18 verses 20, Leviticus chapter 20 verse 13, Romans chapter 26 verse 27, all these shows that God is against homosexuality. बाइबल हमें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बाइबल पूरी तरीके से इससे बहिष्कार करती है क्योंकि उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 1 से 13 तक, लेव व्यवस्था उसका 18 अध्याय 22 पद ये इन बातों के बारे में बाइबल हमें बताती है. So if it is against God's will, then we have to do something about it. Just check on your children.
इसीलिए ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। इसीलिए आप लोगों को माता पिता होने नाते ये जानना जरूरी है कि आपके बच्चे आज क्या कर रहे हैं। Sometimes parents are very simple, very simple. कभी कभी हम माता पिता बहुत ही साधारण होते हैं, I सीधे know, होते हैं। I know very well of one lady. I know her so well, one lady. मैं एक लेडी को जानती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। She used to have her grandson staying with her. उनका एक पोता है जो उनके साथ बैठता है। And that, that grandmother said that, oh, my grandson, he's always having male friends to come and stay with him and, all that. वो हमेशा कहती है कि मेरा पोता कितना अच्छा है कि वो किसी लड़की को नहीं लाता और उसके सारे दोस्त लड़के हैं और वो मेरे घर में आते हैं। But it's only after she passed away that they all came to know that this boy was having a abnormal relationship with some of those male friends. और उस लेडी के गुजर जाने के बाद पता चलता है कि उस लड़के के अपने लड़के दोस्तों के साथ यौन संबंध थे। Another quality, another thing about the young people today, restlessness. और एक चीज जो आजकल हम नौजवानों में देखते हैं वो है the prodigal son. चंचलता, अस्थिरता। The prodigal son. They cannot sit in one place for long. वो एक जगह स्थिर रह के लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। In fact, parents say, live by our rules or get out. और जब उनके माता पिता कहीं बाहर चले जाते हैं, the school, the college says, live by our rules or get out. और स्कूल और कॉलेज में कहा जाता है कि या तो आप नियम में रहे या फिर आप वहां से निकल जाएं। But young people nowadays are so bold. They say, okay, I get out. और आजकल के नौजवान इतने बोल्ड हो गए हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, मैं नियम में तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये स्कूल छोड़कर चला जाऊंगा। And so what happened? They refuse to live by your rules. They want to go to the glamorized world. इसीलिए वो आजकल कोई नियम में या डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते और वो ग्लैमर आकर्षित दुनिया में, सांसारिक दुनिया में खो जाते हैं। That's why we call this a restless and a runaway generation. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नौजवान है बहुत ही अस्थिर और चंचल मन वाले होते हैं। Where do they run away? वो कहाँ भाग जाते हैं? They run away from parents. वो अपने माता पिता से दूर भाग जाते हैं। They run away from home. वो अपने घरों से भाग जाते हैं दूर। They run away from God. वो परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। And they fall into a cesspool of sin. और वो पाप में डूब जाते हैं। And in this cesspool of sin, there's what? There's alcohol, there's drugs, there's dirty sex, murder, theft, gambling, and all sorts of things. और ये पाप क्या है? वो है शराब, या तो वो शराबी हो जाते हैं, वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, वो डर्टी सेक्स करते हैं, वो किसी का खून करते हैं, चोर बन जाते हैं, या फिर जुए खेलना शुरू कर देते हैं। And it's here. If you want to go and find your children in this cesspool, you'll find them all, addicted and soaked with all these things that are in the world. और इस प्रकार के बच्चे जो अपने घरों से भाग जाते हैं, उन्हें आप इस प्रकार के स्थानों में पड़ा हुआ पाते हैं, इस अवस्था में। There's a mother who came to me. एक माँ थी, वो मेरे पास आई। She said, my son is a drug addict. उसने She कहा brought her कि son. मेरा बेटा एक ड्रग्स एडिक्ट है, वो ड्रग्स लेता है। She said, there are times when he is out of drugs. ऐसे समय भी होते हैं जब वो ड्रग्स को नहीं इस्तेमाल करता। And sometimes she said late at night, even 12 midnights. और कभी-कभी ऐसा होता है कि 12 रात के 12 बजे तक भी। He is so in need of that drugs that she said, I have to go out and look for someone who's supplying drugs so that I can keep my son normal. और ऐसा भी समय होता है जब मेरे बेटे को नॉर्मल रखने के लिए जब उसे ड्रग्स लगाने का तलब होता है, तो मुझे लगता है कि मैं ही खुद बाहर जाकर उसके लिए वो ड्रग्स लेके आऊं। So that's why, parents, you have a lot of things to do.
Let's start with this. A meaningful worship time. आइए हम वचन को देखेंगे। A meaningful worship time एक where you can speak God's word and impress that God's word upon their hearts. एक असल वर्शिप जहां आप परमेश्वर के समय परमेश्वर को समय देते हैं। A meaningful worship time. एक असल आराधना का समय। You know, in this worship time, और इस आराधना के समय में can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? Be creative. आप Be creative. क्रिएटिव बने। Like, suppose you want to lead your children to the Lord. Suppose you want to lead your children to Jesus Christ. जब आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, Can I give you one suggestion for those of you all where children are still do not know Jesus Christ? मैं उनके लिए ये सुझाव देना चाहूंगी जिनके उन माता पिताओं को जिनके बच्चे अब तक यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए हैं। Get an invitation card. Invitation card. आप उनके लिए आमंत्रण पत्र बनाएं, इनविटेशन कार्ड बनाएं। Someone has sent you an invitation card and there it's written RSVP. और उसमें RSVP लिखे, अपने इनविटेशन कार्ड बनाकर जब वो RSVP लिखे। You know, in the invitation cards, why they put RSVP and with certain numbers? आप जानते हैं कि इनविटेशन कार्ड में RSVP और नंबर्स क्यों लिखा जाता है? So that you will respond to the person who has sent you the invitation card that I will come or I won't be able to come. और इसीलिए वो नंबर और एड्रेस लिखा जाता है ताकि आपने जिसे आमंत्रित किया है वो आपको बता पाए कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा। So you can say this. God has an invitation card and that is the Bible. आप उन्हें कह सकते हैं कि परमेश्वर के पास एक निमंत्रण पत्र है आपके लिए और वो है बाइबल। He is calling you. और वो आपको बुला रहा है। Respond. आप रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें। If you respond and say, yes, I accept Jesus Christ in my heart, then your name, like in Revelation chapter 20, verse 15, your name will be written in the book of life. और जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए बुलाहट को स्वीकार करेंगे तो आपका नाम भी उस पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। If you don't respond, और आप अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, your name will not be there in the book of life. और उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम भी नहीं लिखा रहेगा। God will not be able to prepare a mansion for you in heaven. और वो जो भवन परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है उसमें आप दाखिल नहीं हो पाएंगे। So that's why using of an invitation card, a simple invitation card, is very good to help your children make a decision to follow Jesus Christ. और एक सिंपल इनविटेशन कार्ड आपके बच्चों को मदद करेगा परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। In an invitation card, RSVP is given because you need to call people that yes, we will come. Then they'll prepare food for you. They'll prepare the seat arrangement for you. एक इनविटेशन कार्ड में, निमंत्रण पत्र में RSVP इसलिए लिखा जाता है ताकि आप बता सके कि मैं उस स्थान में आ पाऊंगा या नहीं। और जब आप वहां जाएंगे तो आपके लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। And this worship time is the best time to talk about those things. Make it interesting. और यही आराधना का समय एक असल समय है जहां आप परमेश्वर में अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। You know, I'll just give you some tips how to prepare for family worship. मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि आप अपने पारिवारिक प्रार्थना के समय को किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Sometimes, you know, when you have family worship, only the father reads the Bible and he reads a long passage. ज्यादातर जब हम पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं तो हम पाते हैं कि पिता ही परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के बाद बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं और उसे लंबे समय तक उसका व्याख्या करते हैं। And sometimes he prays a very long prayer. और कभी-कभी वो बहुत ही लंबा प्रार्थना भी करते हैं। And when he says amen, और जब वो आमीन कहते हैं, the children are all asleep. और सारे बच्चे सो जाते हैं वहाँ।
That's why, here's a simple way to prepare for your family worship. इसीलिए एक सिंपल पॉइंट्स है जो आप अपने परिवार में वर्शिप के समय इस्तेमाल कर सकते हैं. Select a Bible passage. एक पवित्र शास्त्र से एक पैसेज आप सेलेक्ट करें. In that simple passage, look for the central truths, the central theme of that passage. और उस पैसेज में से जो आप कहना चाहते हैं केंद्रित विषय Talk on that. आप उसके बारे में बात करें. And you know what? With that central theme, you can even include a song that goes with that central theme. और उस थीम के अनुसार, उस विषय के अनुसार आप कोई गाना भी गा सकते हैं उस समय. And so with that, always apply it. Application is so important even in a family worship. इसीलिए उसे वास्तविकता में लाना, एप्लीकेशन में लाना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में. Appeal for a verdict, that means give time for them to know Jesus or to come to Jesus. और उन्हें आप वो समय दे ताकि वो यीशु को असल प्रकार से पहचानने पाए, जानने पाए. So this is a very simple way. और ये बहुत ही साधारण तरीका है. You include a game, a song, or a story, or show and tell. Show and tell is the one which I included the invitation card. That is show and tell. जिसमें आप उनके साथ खेल सकते हैं, आप स्तुति प्रशंसा गा सकते हैं, आप कोई कहानी उनके साथ बात कर सकते हैं, और जिस निमंत्रण पत्र के बारे में मैंने आपको कहा था आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से. Then conclude with a simple short prayer. और एक बहुत ही छोटा सा असल प्रार्थना, सिंपल साधारण प्रार्थना आप करें. Simple, short but sweet prayer that they will remember even when they go to bed. एक ऐसा प्रार्थना जो बहुत ही छोटा और बहुत ही मीठा हो ताकि वो अपने सोने जब जाए तभी उन प्रार्थनाओं को वो याद रख सके. I'll just take another 5 minutes. और 5 मिनट में लूंगी. Noah's Ark. नोहा का जहाज. I've put here Noah's Ark. मैंने यहाँ आप लोगों को नोहा का जहाज दिखाया है. Noah's Ark. Did it reach the destination or not? क्या नोहा का जहाज अपने डेस्टिनेशन में यानी Did it complete the journey? क्या उसने अपने पूरे सफर को पूरा किया और उसको जहां पहुंचना था वहां पहुंचा? Yes. हाँ. Because as we said earlier, even though it was built by a mature people, Noah, his son, his wife, his daughters-in-law, but because they followed on God's word, that Noah's Ark reached its destination, completed the journey. जबकि नोहा के लिए ये सब कुछ नया था, वो उन चीजों में परिपक्व नहीं था, तब भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर उसी समय अपने मंजिल को उसने पा लिया था. उस जहाज ने अपने डेस्टिनेशन में वो पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना था. But Titanic, you all know about Titanic. आप टाइटैनिक के बारे में जानते हैं सब कुछ. Built by the best world professions. वो वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया गया था. Did it reach the destination? क्या वो अपने मंजिल पे पहुंचा? No, it didn't. नहीं, वो नहीं पहुंचा. Whatever the world give our children will not be able to finish the race well. अगर आप अपने बच्चों को सांसारिक शिक्षा दे रहे हैं तो आपके बच्चे भी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे. It's God's word alone. केवल परमेश्वर का वचन उन्हें अपने मंजिल में पहुंचा सकता है. You know, when my children were studying outside, जब मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, I always send them verses almost every time. मैं उन्हें बाइबल से परमेश्वर का वचन भेजा करती थी मैसेज में. But the best verse, chapter of Psalm 121. और जो एकदम बेस्ट वर्ड था जो मैंने उन्हें भेजा था वो है भजन संगीता 121. I always ask them to read Psalm 121 every day before they go to class. और मैं उन्हें हमेशा कहा करती थी कि आप लोग क्या करें, भजन संगीता 121वां पद पढ़े. Which says that my God, our God, neither slumber nor sleep, but he will watch over you when you go out and when you come in. मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी तुम्हें
अकेला नहीं छोड़ेगा। जब तू सोने भी जाएगा तब भी परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। So therefore you see here, whatever the world teaches is good. Okay? In fact, unsinkable. आप यहाँ देखते हैं कि वो जहाज जो डूब नहीं सकता था, But we saw Titanic sank. जो जहाज टाइटैनिक जो डूब नहीं सकता था, वो जहाज क्या हुआ? डूब गया। Noah's Ark completed his journey. और वो जहाज जो परमेश्वर की आज्ञाओं द्वारा बनाया गया था, जिस जहाज को नोहा ने बनाया था, उसने अपने सफर को पूरा किया। So parents, give God's word. It's eternal. इसीलिए मैं माता पिता से आग्रह करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों के साथ बांटे, क्योंकि यह वचन अनंत अनंत का है। ये वचन, You know, I have a little story to tell. मेरे पास एक छोटा सा कहानी है आप लोगों को बताने When के my लिए। son, second son, Jeremy was young, जब मेरा दूसरा बेटा जब छोटा था, he was brushing his teeth the whole day. और वो दिन भर अपने दांतों को ब्रश करता था। And his elder brother came and told me that Jeremy is brushing his teeth all the time. और उसका बड़ा भाई मुझे आके कहता था कि जेरेमी अपने दांतों को हर समय ब्रश करता रहता है। So I told Jeremy, I said, come here, sweetheart. तो मैंने अपने छोटे बच्चे को जेरेमी को बुलाया, इधर आओ बेटे। I said, what happened? मैंने उससे पूछा क्या हुआ? Why are you brushing your teeth the whole day? तुम अपने दांत को दिन भर क्यों ब्रश कर रहे हो? He said, the television says that we have to brush our teeth every day. क्योंकि टेलीविजन टीवी में बताता है कि हमें अपने दांतों को हर रोज साफ करना चाहिए। Then I have to brush it every time I eat. इसीलिए मैं जब भी खाता हूँ, इसीलिए मैं ब्रश करता हूँ खाने So के बाद। even if he eats a sweet or eats a biscuit, he goes and brushes teeth. और इसीलिए वो अगर छोटा सा एक चॉकलेट या बिस्किट भी खाता था तो वो ब्रश करना शुरू कर देता था। So I said, what else did the TV say? तो मैंने उससे पूछा और टीवी और क्या बताता है? No, he said that if I don't brush my teeth properly, all my teeth will fall. वो ये बताता है कि अगर मैं अपने दांतों को साफ ना करूं, ब्रश ना करूं, तो मेरे सारे दांत गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। And then you know what? I told him, come, let's open the Bible. तब मैंने उससे कहा कि आओ हम बाइबल को खोल के देखें, बाइबल क्या बताती है। And so I opened the Bible, I sat with him and I showed him Philippians chapter 4 verse 6. और तब मैं उसके साथ बैठी और मैंने फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 6 पद उसके साथ बांटा। So I told here, it says, do not worry about anything. तब मैंने उसे ये बताया कि कल के लिए तुम चिंता ना करो, but by prayer and supplication let your requests और प्रार्थना और आग्रह के द्वारा be made known to God. और प्रार्थना और आग्रह के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब पूरा करेगा। So I said, let's pray. आओ हम प्रार्थना करें, मैंने कहा। So I prayed with him, claiming the promise that his teeth will not fall. और मैं उसके साथ बैठी और मैंने प्रार्थना किया ताकि उसके दांत ना गिरे। And after that, he was very happy. और इसके बाद मेरा बेटा बहुत ही खुश था। And that brushing teeth every day stopped. I और, mean, every time, the whole और day stopped. हर समय उसका ब्रश करना बंद हो गया। So this is how powerful God's word is. इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। So last but not the least, I want to close with this. Okay, I know you're all tired. I know I could go on. Where parenting is concerned, I could go on. जब माता पिता की शिक्षा के बारे में सवाल आता है तो मैं दिन भर भी बोल सकती हूँ, लेकिन अंत में मैं ये आपको बताना चाहूंगी। Matthew 13 verses 1 to 3 talks about the parable of the soul. मत्ती उसका 13 अध्याय 1 से लेके 3 पद कहता है, एक दृष्टांत के बारे में बताता है, एक बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में। In that parable, it talks a lot about soil, the different kinds of soil. और इस दृष्टांत में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया गया है। But it also talks about the good soil. और इसमें अच्छा उपजाऊ भूमि के बारे में भी बताया गया है। In your homes, आज आपके घर में there are acres and acres and acres of good soil in आज your आपके घर homes. में एकर्स और एकर्स उपजाऊ मिट्टी है।
So sow the good seed of the word of God. इसीलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप परमेश्वर का वचन भरा बीज अपने घर में बोए. You'll never regret. आप कभी भी पछताएंगे नहीं. Of course, who are the sowers? In Ephesians 6:4, the father. In Acts 16:1 is the mother and the grandmother, because the father was an unbeliever. और वो बीज बोने वाला कौन है? यहाँ हम पाते हैं हो सकती है और एस्टर में कहा गया है कि वो एक आपका कजन, आपका भाई, कजन ब्रदर या अंकल भी हो सकता है. So anyone who has a burden for the children, please sow the seed. वो सभी जिनकी हृदय में बच्चों के लिए वास्ता है, वो पानी क्या है? बीज बोने वाले इंसान. Fathers play a very important role in parenting. King David, what did he do? He sat with his son in Proverbs chapter 4, the whole of Proverbs chapter 4. David spoke to his son Solomon. पिता का बहुत ही मुख्य गुण होता है परिवार में. बाइबल में पाते हैं कि दाऊद राजा ने अपने बेटे सोलोमन के साथ इनके वचन 4 में बातें की. Noah and all his sons were young. और नोहा ने अपने बेटों को उस जहाज को तैयार करने में इन्वॉल्व किया, अपने साथ रखा. Elijah the priest neglected his sons and they died physically and spiritually. और हम जानते हैं कि वो प्रीस्ट एली जिसने अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया था, उनके बच्चे किस प्रकार से नाश हो गए. Look at this picture. आइए हम इस पिक्चर्स की ओर देखें. What do you see? आप यहाँ क्या देखते हैं? There was a father who thinks that he's a leader of the family. He walks in circles. यहाँ आप देखते हैं कि फादर का लीडर है, वो आगे में चल रहा है. Children follow him. और उनके बच्चे उसके पीछे पीछे उससे फॉलो कर रहे हैं. He's the other side. और जब उसकी तरफ पहुंच जाता है, Only one remains. सिर्फ एक ही बचा है. The rest have fallen into those holes. सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं. So parents, don't take your children for granted. इसीलिए पेरेंट्स से जितने भी हम माता पिता हैं उनसे आग्रह करते हैं बच्चों को ग्रांटेड मत लें. Turn back once in a while. Look, आप पीछे मुड़े और अपने बच्चों को देखें, जीवन की ओर देखें, how are they doing? वो क्या कर रहे हैं. Ask your children, how are you doing? और अपने बच्चों से पूछें कि आप क्या कर रहे हो, जीवन में क्या कर रहा है. You know, I want to tell you another story of my son, the eldest son. मैं अपने बड़े बेटे के बारे में आपको बताऊं. One day, on holiday from Bangalore, अपने छुट्टियों के समय बैंगलोर से वो आया मेरे पास. and I thought everything was okay. और मुझे लगा सब कुछ सही है. So then, one afternoon, we were having lunch together with him. इसी प्रकार एक दोपहर के समय में हम जब खाना खा रहे थे And it happened to be his birthday. और वो उस दिन उसका बर्थडे था. Then we ate, we talked, हमने खाना खाया, हमने बातचीत किया and I thought everything was okay. और मुझे लगा सब कुछ सही है. Then for some time he was quiet and he was a little worried. और मैंने देखा कि वो बहुत ही शांत बैठा हुआ और चिंतित नजर आ रहा. Then I said, Timothy, anything wrong, sweetheart? तुम जानते हो And with that, he just broke. मेरे शब्दों को सुनते ही वो पड़ा, रोने लगा. Then I got up from my seat and I went and put an arm around him. जगह से उठे, उसके पास गई और मैंने उससे कहा, I said, what happened? और मैंने पूछा क्या हुआ. And he told me the reason. और उसने जो भी उसके साथ बताया, उसने मेरे साथ बताया. But he hugged me then. और उसने मुझे गले लगाया. He said, please pray.
और उसने मुझे कहा धन्यवाद for being here. Thank you. So don't take your children for granted. Don't say that everything is all right. अपने बच्चों को आप आसानी में ना लें, ग्रांटेड ना लें। I want, I'm sure God wants godly mothers like we have in the Bible. I'm sure there are many godly mothers here, godly fathers here. मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सभी परमेश्वर में परिपक्व माता पिता हैं। Look at Exodus chapter 2 verses 1 to 10. निर्गमन उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 10 तक अगर हम देखते हैं Talks about a creative mother who saved her son Moses. हम यहाँ देखते हैं कि एक अद्भुत विधि से एक माँ ने अपने बेटे को बचाया था अद्भुत तरीके से और वो थी मूसा की माँ। She took time to build that possibility. उसे समय लगा उस टोकरी को बनाने में And that's how she saved her son's life. और इसी उपाय से उसने अपने बेटे की शादी कर दी। So therefore, Kevin, be creative. इसीलिए एक माता पिता होने का क्रिएटिव होना पड़ेगा। How to save your children from this world. अपने संतानों को किस प्रकार से संसारिक शिक्षा से बचाने के लिए। Because you can see that the world is becoming more and more creative to steal away our children. क्योंकि हम देखते हैं कि संसार बच्चों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर तरह के उपाय अपना रहा है। The world doesn't mind spending lakhs and lakhs of rupees just to track your children and my children. संसार की चीजें इतनी क्रिएटिवली बच्चों का ध्यान खींचने के लिए लाखों रुपए को खर्च करते हैं। But we don't even have a decent time to have a family worship to speak to our children. पर हमारे पास एक असल समय भी नहीं है अपने बच्चों के साथ बातचीत करने का या फिर परमेश्वर के साथ समय बिताने का। So be creative, get the children involved in your worship. इसीलिए आप लोगों को क्रिएटिव होना जरूरी है ताकि आप अपने बच्चों को आराधना के लिए आकर्षित कर पाए। Samuel and Hannah dedicated Samuel to God even before his birth. हम यहाँ हन्ना के बारे में जानते हैं कि हन्ना ने किस प्रकार से उसके जन्म होने से पहले ही सामुएल को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। Dedicate your children every day. आप सीखे परमेश्वर में समर्पित करना अपने बच्चों को प्रतिदिन। Every day when my husband has gone to work, my son Timothy has gone to work, Jeremy has gone to work, I know that my son Timothy Daniel has gone to work. I will sit on my sofa in the room and I pray loudly and I say, God, bless them to the friends. Dedicate them to you. जब मेरे पति अपने ऑफिस में चले जाते हैं और जो मेरा बेटा तिमोथी बैंगलोर में रहता है वो भी अपने काम में अपने समय में जाता है उस समय मुझे पता है तो उस समय मैं अकेले अपने घर में क्या करती हूँ कि मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रार्थना में परमेश्वर से कहती हूँ कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को मैं आप में समर्पित करती हूँ। And in Luke chapter 2, it talks about Mary. और हम लूका का दूसरा अध्याय में पाते हैं कि वो मैरी के बारे में उसने किस प्रकार से यीशु को बड़ा किया परवरिश किया। In fact, over these verses, it said that Mary watched Jesus. मरियम ने यीशु को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते Growing in favor with God and man. परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते थे। So many of us, as I said, we have no time to watch our children, where they go, what kind of clothes they're wearing. We have no time. कभी-कभी हम माता-पिता के पास ये समय ही नहीं होता कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे कब बाहर जा रहे हैं, उन्हें क्या पहन के रखा है। That's why when the world looks at some of our people, our young people, they say, whose children are those? Look at the way they talk. जब इस प्रकार से होता है तो इसीलिए जब बाहर वो बच्चे बाहर जाते हैं बाहर के लोग भी कहते हैं कि देखो ये किनके बच्चे हैं वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं किस प्रकार का उन्होंने कपड़ा पहन रखा है।
That's why we teach. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को निगरानी करें। But it's so nice if people say, those children are those who will behave, who will be strong. Those children are those. और एक माता पिता होने के नाते कितना गर्व होता है ना जब कोई कहता है कि लेकिन के बच्चे उन्हें कितना सुंदर कपड़ा लगाया है, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनके बातचीत करने का तरीका कितना सुंदर और कितना अच्छा है। Teach me that way. इसीलिए आज हमें मरियम की माँ बनना सीखना है, जो यीशु की माता है। Watch your children when they grow, they grow in favor. When people see them, they say, "It's got blessing to come to speak here, in the church." लेकिन कितनी खुशी की बात है ना जब लोग कहें कि ऐसे बच्चे हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में, हमारे घर में जिनका स्वभाव इतना अच्छा है। I said, children that love us time. मैंने सुबह आप लोगों को बताया कि बच्चों को हमारे बच्चों को हमारे समय से प्यार है। Sometimes there are some that say, you know, it's parents, mothers especially, children come and say, "No, thank you, no." Sometimes कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम कहते हैं नहीं बेटा आप बाद में मुझसे बात कर लो, अभी मैं कुछ कर रही हूँ। you know, I have a lot of parents who come to me and say, "These children are having home, my children are having home." ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे घर में नहीं रहते। You know, there's one family, एक इसी प्रकार का एक परिवार है, they had problem with their son. They had problem with their son. उनको अपने बेटे के साथ कुछ समस्या है। Then I met the parents. और मैंने उनके माता पिता से मिली In that talk that we had, I had with them. और मैंने उनसे बातचीत किया The father blamed the mother blamed the father. और जब मैंने उन पेरेंट्स से बात किया माता पिता से तो उनके जो पिता है वो उसकी माता पे दोष लगा रहे थे और जो माता है उसके पिता पे दोष लगा रहे थे That's why the son is on his house. और कह रहे थे कि इनकी वजह से मेरा बेटा क्या होता है घर से दूर रहता है। Sometimes put away certain things that you will do later. Take time to encourage you. आप अपने कामों को करें लेकिन अपने समय में करें, लेकिन जब आपको अपने बच्चों के लिए समय देना जरूरी है, निकालना जरूरी है। You know what? If you want to evangelize your children or maybe your husband, put tracts and magazines wherever possible. Okay? I want to give this suggestion. आप जब अपने बच्चों को यीशु के बारे में प्रचार करना चाहते हैं, यीशु के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रैक्स परमेश्वर का वचन उनके बुक्स पे रखा कीजिए। Put tracts in their bathrooms or in their bedrooms. इसी प्रकार का परमेश्वर का लिखा गया ट्रैक्स उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में आप रखिए Or wherever the children hang out. और जहाँ पे भी बच्चे बैठते या खेलते। You know the story of Hudson Taylor. मुझे लगता है कि आपके हडसन टेलर के बारे में एक कहानी जानते होंगे How did he come to Jesus to attract rich? और वो किस प्रकार से यीशु के समीप आ पाया एक ट्रैक के द्वारा। A small tract that he found. एक छोटा सा ट्रैक जिसे उसने अपने घर के फर्श पे पाया था। I want to end with this. और इसी के साथ इस कदम को शेयर करूं। On a Sunday morning, और संडे के दिन में सुबह में look in Exodus chapter 10 verse 9. निर्गमन उसका 10वां अध्याय और 9वां पद कहता है, When Moses went to see Pharaoh, जब मूसा फारूक के पास गया he said, "Let my people go." मेरे लोगों को जाने दो कहकर। What did Pharaoh say? और फारूक राजा ने क्या कहा? He said, "Yes, take all the old people with you, but leave the children behind." उस फारूक राजा ने कहा कि ठीक है तुम सारे वृद्ध लोगों को लेके चले जाओ, लेकिन जितने भी छोटे और नौजवान लोग हैं उन्हें छोड़ दो। But Moses said, "No, you
But not only the old ones, but the children and everyone to go and worship God in the wilderness. तब मूसा ने कहा नहीं, मैं अपने सारे लोगों को ले जाऊंगा, बड़ों से लेके बूढ़ों से लेके बच्चों तक, ताकि हम परमेश्वर के भवन को तैयार कर वहां परमेश्वर की आराधना करने पाए। So that's why every Sunday morning, get everyone ready to go to church as a family. And come to church. इसलिए हर रविवार आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को तैयार करें, अपने मंडली की सोच में आए। Please see you. आप कृपया ध्यान दें इन चीजों पर। One thing I can share with you is that I have taught my children, whether there is exams or no exams, someday you have to go to church. मैंने हमेशा से अपने बच्चों को ये शिक्षा दी है कि अगर आपका एग्जाम हो या ना हो, संडे को आपको चर्च जाना ही होगा। Sometimes parents say, don't go to church today, you have exams. कभी-कभी हम पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को ये सुझाव देते हैं कि आपका एग्जाम है, आप चर्च मत जाओ, घर पर पढ़ाई करो। You know what you're trying to tell your child? Don't go and waste your time. आप ये कहना, इसके जरिए आप अपने बच्चों पे यह शिक्षा डालते हैं कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें चर्च जाओ। If worshiping God is a waste of time, अगर परमेश्वर की प्रशंसा करना समय की बर्बादी है, then you don't have to even go to church. None of us. तब मंडली में जाना, चर्च में जाना, उपस्थिति में जाना का कोई जरूरत नहीं। So that's why I have made it a point, exams or no exams, every morning we go to church. इसीलिए मेरे परिवार में मैंने ये साफ तौर पर अपने बच्चों को शिक्षा दी है कि अगर आपका एग्जाम हो या ना हो, रविवार हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने जाएंगे। Take your children, take everyone and go to church. अपने परिवार के हर सदस्य को आप इकट्ठा करें और आप चर्च में आएं। This is just a picture in church. I like this lady. She does small things. ये मैंने एक पिक्चर खींचा है अपने चर्च में, ये भी है छोटे-छोटे बच्चों को। I can see that these kids they go in the church. मैंने देखा इन बच्चों को गिरजाघर में बड़े होते थे And now they are in Sunday school. और अब ये छोटे-छोटे बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं। You know, therefore, even when the spiritual parents, the mothers say, "I church, my babies are still young." मैंने बहुत सारे माँओं को देखा है जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं आज गिरजाघर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी बच्ची या बच्चा बहुत ही छोटा है। I remember when मुझे याद है जब मैं ऑक्सफोर्ड में थी, I always go to one church, Methodist church. मैं हमेशा एक मेथोडिस्ट चर्च में जाया करती थी। These mothers with their young babies of 1 month old, 2 months old, they bring their babies in a basket. नई माताएं नवजात शिशु को लेकर चर्च में आते थे And then she sits here, she keeps the basket there. और उस बास्केट को जिसमें वो बच्चे रखते थे वो खुद बैठते थे और सामने उस बास्केट को रखते थे। And if the baby cries, you know, she gives the milk bottle. और जब बच्चे रोते थे तो वो क्या करते थे, वो दूध के बोतल को उस बच्चे को देते थे। This is something beautiful. और ये बहुत ही सुंदर है। Of course, I would like to stop here, but let me say, why are children going astray? Poor leadership and no motivation. मैं यहाँ खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि क्यों बच्चे संसार में खो जाते हैं, क्यों आजकल के नौजवान संसार में खो जाते हैं। एक है गलत नेतृत्व के द्वारा। And look at this now. Loneliness is the issue of the youth today. A lot of young people are lonely. आज हर एक नौजवान अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। You know why they're अकेलापन। lonely? क्यों? Because once their mobile is switched off, क्योंकि जब उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, all they can see is a black screen. और वो सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन देख पाते हैं। Because this mobile phone और यही मोबाइल फोन has separated children and parents, और इसी मोबाइल फोन ने बच्चों और माता पिताओं को अलग कर दिया है। even the children with their best friends. और बच्चों को अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे खास दोस्त के साथ भी अलग कर दिया So है। that's why loneliness is the issue of the youth today. इसीलिए आजकल नौजवानों के बीच में अकेलापन एक इशू बन गया है।
The suicide statistics in India. Just look at what is the suicide statistics in India. हम यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया में कितने आत्महत्याएं करते हैं लोग. The National Crime Record Bureau presented in the parliament recently, that was last year, यहाँ हम एक स्टेटस देख रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो 24,568 in the age group of 14 to 18 years, they die by suicide. जो 2021 में दिखाया गया था, ये बताती है कि 14 से 18 साल के बच्चे 2017 से लेके 2019 तक 24,568 बच्चों ने आत्महत्या किया है. This is just age group of 14 to 18 years. What about the rest? There'll be more. और ये एज ग्रुप 14 से 18 साल के बच्चों का है, और इससे भी बढ़कर और भी हो सकता है. And what are their reasons? Failure in exams. और उनके आत्महत्या करने का विषय होता है अपने परीक्षा में पास ना हो पाना, Failure in their love affairs. लव अफेयर्स में फेल होना, Mental disorder, and they go through depression. मानसिक डिप्रेशन में जाना. So this is a situation which is happening in India. और ये सिचुएशन है आज भारत के. And there are some places here in the Northeast, I will not tell you the state, where the percentage of suicide is 85%. मैं आपको स्टेट का नाम नहीं बताऊंगी नॉर्थ ईस्ट में, और इसका परसेंटेज है 8.5%. I'll tell you it's because of loneliness. और ये अकेलेपन के कारण है. ये They can't share with their parents. वो अपने माता पिता के साथ अपने अनुभवों को शेयर नहीं कर पाते. With their parents there's hardly any relationship. The communication is so bad. उनके अपने माता पिताओं के साथ कुछ भी बातचीत नहीं होता है. Okay. I have seen many houses. I don't know about here in Siliguri, but there in Shillong, there are big, massive houses. शिलोंग में बहुत ही बड़े बड़े मकानों को, भवनों को तैयार किया जाता है. Their gates देखा है are मैंने. so big. उनके गेट इतने बड़े बड़े होते हैं. Their walls so strong. उनके वॉल्स इतने मजबूत होते हैं. To protect whom? किनकी सुरक्षा के लिए? To protect, you know what? The expensive things that they have at home. अपने घर के जो महंगे महंगे चीजों को बचाने के लिए. And where are the children? और इसमें बच्चे Every morning we go to school near the river bank. और हर सुबह ये पिता जाके प्रभु की नदी के सामने जाके प्रार्थना करता है ताकि उसका बेटा पुनः वापस आ सके, जीवित हो सके. Every morning. वो हिम्मत नहीं हारता, वो रोज वहां जाकर प्रार्थना करता है. उसे किस प्रकार का प्रेम होगा उसे अपने बेटे के प्रति. क्या हम भी इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? प्रेम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें. हमें प्रार्थना करने वाला माता पिता चाहिए. हमें आप चाहिए कि हमारे माता पिता अपने बच्चों के साथ असल प्रकार से वार्तालाप करें, बातचीत करें. And we all say that with this, but can I suggest one thing? मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे माता पिता हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी. पहला, Learn the art of concentration, whatever you're doing. आप पहले एकाग्रित कंसंट्रेशन, एकाग्रित अपने ध्यान को एक जगह लगाने का आर्ट को सीखें, जहाँ आप अपने ध्यान को केंद्रित करना. Sometimes you know work which even for 1 hour, it can stretch to 5 hours because why we don't know how to concentrate on our work. कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी काम में आपको 1 घंटा ही चाहिए, लेकिन जब हम अपने काम पे केंद्रित नहीं हो पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, वो काम हमारे से 5 घंटे तक वो काम चलता रहता है. And that's what we say, I don't know how to spend my June. इसीलिए शायद हम
कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है अपने बच्चों के साथ बिताने। So learn the art of concentration. इसीलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि ये अपने ध्यान को केंद्रित करने के इस आर्ट को आप सीखें। The second one is और दूसरा है strip away non-essential demands on your time. जो महत्वपूर्ण नहीं है उस समय को आप अपने दिन भर की दिनचर्या से अलग कर दो। आप उन चीजों पे अपने समय को ना बिताएं जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। There are certain things that others will do. Delegate. ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे भी कर सकते हैं, आप उन कामों को उन्हें दे सकते हैं So that that time you will spend with family and with children. ताकि उस समय में आप अपने परिवार के साथ वो समय बिता पाएं। But the thing is, as we always say that, no, I need to be, or I have to be. लेकिन ऐसा है कि हम कितने बार सोचते हैं और कहते हैं कि मेरा वहाँ होना बहुत ही जरूरी है। So delegate work. इसलिए कितने बार आपको अपने सहयोगी को अपने काम सौंपना भी जरूरी है, Especially your workplace, आपके काम के स्थान पे, so that you move formally and spend time with your family. ताकि आप जल्दी अपने घर से आना है परिवार के साथ अपना समय बिता पाएं। Close to this. Even your mobile phone, sometimes you need to strip it away. Full enough time to be with God and to be with. इसीलिए मैं माता पिता से आग्रह करूंगी कि अपने मोबाइल फोन को भी आप कितने बार क्या करें अपने से थोड़े दूर रखें और वो समय जो आप मोबाइल में बिताते हैं वो अपने बच्चों के साथ बिताएं। Okay, I want to end. I want to sing a song. मैं गाने के साथ It's a song that we sang in German. But this is a song I'm dedicating to all of you as you journey in life. ये जो गाना है मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ आपके जीवन के सफर के लिए। I wish you all good things life can bring as you travel through the years ahead of you. In your soul be filled with laughter, sorrows turn to joy, and the flowers bloom, the valleys grow. Will you fly like an eagle, way up in the skies, and never lose a strength within? May your life be a blessing through friends along the way, as you share the joy and its spread. May the years ahead you be filled with love and hope and peace and strength together. And the strength together. The strength of parents to carry on. Thank you. Early for a wonderful time of sharing your heart in our church. I'm sure all of us have been blessed with the sight of some of our we हैं जो भी आप सुने हैं और मैं चाहता था कि कुछ प्रश्न उत्तर के समय में जाए लेकिन कभी भी एक या दो प्रश्न यदि है कि आपको एकदम जरूरी पूछना है तो ये समय दिया जाता है सबसे पूछना ही है प्राप्त करने विशेष तो प्रश्न तो बनाए जो umaru ali yang sama masuk baik sama menurut nomor sa ini kenapa dari mana sa
परमेश्वर सबैलाई निर्वाचित छ। तपाईँको दासलाई तपाईँले हाम्रो माझ ल्याउनुभयो। जे कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ यो बुझ्छौँ भने त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि विशेष गरिकन परिवारसँग विश्वासको सम्बन्धित सम्बन्ध विशेष गरिकन अहिलेको पढ्दै विषयमा जे कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ अति नै गम्भीर कुरा राख्नु भएको छ। जसले हामी यहाँ सुनिरहेको छौँ देखिरहेको छौँ हामी धेरै जग्गा बनाएको छौँ। अनि हामी चाहन्छौँ प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा हाम्रो आफ्नो पुस्तालाई बाटोमा हिँड्न सकाउँ, तपाईँको राज्यमा प्रवेश गर्न सकौँ। अहिले जे कुराहरू वचनमा राखेको छ त्यो कुराहरू पुरा भयो हाम्रो जीवनकालमा उनीहरूलाई श्रीमान टोनीलाई हामी याद गर्छौँ। प्रभुजी जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्छ धेरै सेवकाहरू छन् उहाँको सबै जग्गामा शक्तिशाली होस् सबैलाई चाहिँ सेवामा लगाउन सक्नुहुन्छ। तो अप्रैल से है वाणिज्य से है कल सुबह 11 बजे फिर से बोल रही है मतलब चर्च का सेवा में आप यदि चाहते हैं तो अभी चाय है रेडी है नीचे चाय पीजिए। थैंक यू फॉर माय